you all are doing very good. Today students, we are going to start our 5th chapter of class 3rd, which is about our body. Okay, so in this chapter, we are going to discuss about the different sense organ, different organ system of a human body. Let's start the chapter. So the bodies of living things are like machines. In fact, they're even better than machine. Human body is a wonderful machine because it can think, feel, grow and reproduce. No machine can do all this. Have you ever wondered how our body functions? What is our body made up of? In this chapter, we will learn about the structure of our body and its various system. So students, जो living beings की body होती है, वो कैसी होती है? एक machine की तरह होती है. In fact, living being की body machine से भी ज़्यादा better होती है. So if we talk about human body भी एक wonderful machine है because human body क्या कर सकती है? It can think, feel, grow and reproduce. Okay, ये सारे functions कोई भी दूसरी machine अकेले नहीं कर सकती है. Now, have you ever wondered how our body functions? क्या कभी हमने सोचा है कि हमारी body function करती कैसे है? ठीक है, हमारी body किस चीज से मिलकर बनी है? तो इस chapter में हम अपने body के structure को and उसके various systems को discuss करेंगे. Okay, so the very first topic is units of human body. So you must have seen that a house is made up of bricks. Similarly, each part of our body is made up of tiny structures called cell. And cell is the smallest structural and functional unit of the life. Cell are of many types. So student, what they saying, जैसे कि आपको पता है कि एक हाउस जो होता है वो किससे बना होता है? ब्रिक्स से बना होता है. सिमिलरली इसी तरीके से हमारे बॉडी पार्ट भी, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट भी किससे? छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बनता है जिसको हम सेल कहते हैं. सेल हमारी बॉडी की या हमारी लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. ओके, अब सेल में स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. सिमिलर सेल्स जॉइन टुगेदर टू मेक अ टिश्यू. अब वो सेल्स जो एक जैसे हैं, यानी कि जिनका स्ट्रक्चर, जिनका फंक्शन सेम है, वो सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू. देन सिमिलर टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन. फिर वो सारे टिश्यूज जो सेम है, ओके, दे ऑल टुगेदर विल फॉर्म एन ऑर्गन, राइट. फिर ऑर्गन्स फर्दर जॉइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन सिस्टम. एंड वो सभी ऑर्गन्स जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में कोऑर्डिनेट करते हैं, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. Human body is made up of many organ systems which work in a coordinated manner to perform a particular task. So human body students different organ system से बनी है and ये सभी organ system एक coordinated manner में क्या करते हैं? function करते हैं किसी एक particular task को perform करने के लिए. You can see in this picture, this is cell. सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. फिर वो सिमिलर सेल्स जो एक साथ ही कंबाइन हो जाते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज, विच इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल. फिर टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, जो कि आपका ग्रुप होगा ऑफ सिमिलर टिश्यूज. एंड वो सारे ऑर्गन्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दे ऑल टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम विच इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन. And different organ system constitute a human body. The next topic which we have is sense organ. What is sense organ? An organ performs a specific function. Human body has some special organs which help them to know their surrounding. There are 5 sense organs. The sense organs are the windows of our brain. The convey messages to the brain through the nerves and the brain processes the messages and send orders for an action. So student, what they saying, एक organ जो होता है, human body organ क्या करता है? एक specific function perform करता है. Human body के अंदर कुछ special organs होते हैं जो उनको help करते हैं अपने surroundings को पहचानने में, समझने में. Majorly 5 sense organs हमारी body में होते हैं and ये sense organ हमारे brain की windows हैं. क्यों? Because इन्हीं sense organ के थ्रू क्या किए जाते हैं? Messages को convey किया जाता है brain तक, nerves के थ्रू, and brain इन messages को process करके क्या करता है? Order send करता है back to the sense organ for an action to be performed. Now the 5 sense organ, कितने 5 sense organ है? कौन कौन से? That is eyes number 1, जो कि sense of sight provide करता है. Nose sense of smell provide करेगा. Ears sense of hearing. Tongue sense of taste and skin sense of touch. You can see this is eyes, nose, ear, tongue, skin, 5 major sense organs. The next topic which we have is organ system. अब हम different organ system को discuss करेंगे which are there in a human body. So in our body some organs work together as a group to perform one or more function. Any such group of organ is called an organ system. Our body has many organ systems. For example, the digestive system. It includes mouth, food pipe, stomach, intestine and anus that work together to digest food. So students, हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ ही, ओके, दे ऑल टुगेदर वर्क, एक साथ ही वर्क करते हैं ग्रुप में किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को या एक से ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. एंड ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो किसी एक से ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म करता है, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है. हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, ओके, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम.
ये दे हैव गिवन एन एग्जांपल, एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये बिग ऑर्गन सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। सो डाइजेस्टिव तो पूरा ऑर्गन सिस्टम हो गया, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड है? दैट इज माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस। ये सभी डिफरेंट ऑर्गन्स है जो एक साथ ही मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। एंड इनका फंक्शन क्या है? ये एक साथ ही मिलकर हमारे फूड को जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। So, कुछ मेन ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी के यहाँ पे गिवन है, दैट इज स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. Okay, now we are going to discuss about all these organ system of a human body one by one. And the very first is skeletal system. The skeletal system is made up of bones. So skeletal system students किसका बना है? बोन्स का बना है. Around 206 बोन्स होती है एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में. All bones join together to form a framework called skeleton. and सारी की सारी bones एक साथ ही मिलकर हमारे एक बॉडी का फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको क्या कहा जाता है? skeleton कहा जाता है. You can see in this picture, this is the human body skeleton. Skeleton gives support and shape to our body. skeleton का काम क्या है? skeleton हमारी बॉडी को support and shape provide करता है. ये हमारी बॉडी के डिफरेंट डेलिकेट ऑर्गन्स को, जो इंटरनल ऑर्गन्स है डेलिकेट, उनको प्रोटेक्ट करता है, लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, okay, which are present inside our body. Now next we have muscular system. The muscular system is made up of muscle. Muscular system किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है. and हमारी बॉडी में more than 600 muscles are there. These muscles are attached to bones. ये सारी muscles किसके साथ? bones के साथ attached होती हैं. and bones हमें help करते हैं, sorry, muscles हमें help करते हैं various activities को perform करने में, like running, eating, writing. Okay, कुछ मसल्स अलोन यानी कि अकेले वर्क करती हैं और कुछ मसल्स पेयर्स में वर्क करती हैं. Done. Now, next system of our body is digestive system. So digestive system means what? The system which helps to digest the food which we have eaten. Actual में स्टूडेंट जो हम खाना खाते हैं उसके साथ होता क्या है? वो खाना जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाता है, it is broken down into simpler form by our digestive system. वो खाना जब आप इंटेक करते हो बॉडी के अंदर, उसको ब्रेक किया जाता है बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में. किसके थ्रू? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू. ओके, फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ. सबसे पहले फूड यानी कि जो खाना है उसको च्यू चबाया जाता है. किसके थ्रू? टीथ के थ्रू. ओके, एंड टीथ क्या करते हैं? उस फूड को बहुत ही स्मॉल पीसेस में कट कर देते हैं. देन ड्यूरिंग च्यूइंग के दौरान यानी कि खाने को जब चबाते हो उस दौरान फूड इज मिक्स्ड विद सलाइवा प्रेजेंट इन आवर माउथ. फूड किसके साथ? सलाइवा के साथ जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है. एंड फ्रॉम द माउथ, फिर माउथ से कहाँ खाना हमारे फूड पाइप में एंटर करता है एंड कहाँ जाता है? स्टमक में. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये माउथ है, यहाँ पे अपने खाने को च्यू करा, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया एंड फिर ये फूड पाइप है जिसके थ्रू खाना पास करके कहाँ पहुंचता है? हमारे स्टमक में पहुंचता है. देन नेक्स्ट द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसके बाद फूड कहाँ जाता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. ओके, and here the digested food is taken in by the blood and carried to other parts of the body. Small intestine में जाने के बाद क्या होता है? फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है वो ब्लड हमारा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक उसको कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड को. Then the undigested food goes to the large intestine. उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, यहाँ फूड जाएगा, हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड देन द वेस्ट इज थ्रोन आउट थ्रू द एनएस. एंड उसके बाद एनएस वाले पार्ट से जो बचा कुचा वेस्ट है उसको हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं. इस तरीके से द बॉडी पार्ट्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सारे बॉडी पार्ट्स जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, दे आर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस, एंड दे ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ डाइजेस्टिव सिस्टम. Now next we come to excretory system. Excretory system क्या है? We throw the waste into the dustbin to keep our house clean. Similarly, our body also produces waste which have to be removed regularly, and this is done by our excretory system. So student, what they saying, जैसे कि जो हमारे घर में वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम अल्टीमेटली डस्टबिन में थ्रो करते हैं, है ना, सो दैट हमारा हाउस क्या रहे? क्लीन रहे. इसी तरीके से हमारी बॉडी भी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करती है जिसको एक रेगुलर बेसिस पे रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड इस वेस्ट के एक्सक्रीशन को या रिमूवल को प्रोसेस करने वाला जो बॉडी में सिस्टम होता है दैट इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम. राइट, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किडनीज, लंग्स एंड स्किन. एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स किडनी, लंग्स एंड स्किन जैसे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. वी हैव 2 किडनीज, राइट. दे क्लीन ब्लड एंड रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन. किडनी का काम क्या है? ये ब्लड को क्लीन करते हैं, प्योरीफाई करता है ब्लड को, एंड उसके बाद जो ब्लड में वेस्ट है उसको रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. The lungs throw out carbon dioxide. lungs क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैसियस वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर, उसको रिमूव करते हैं. And the skin helps to remove extra water and salt as sweat.
एंड स्किन क्या करता है, स्किन के थ्रू जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट है, जो कि अगेन एक फॉर्म ऑफ वेस्ट है, उसको स्वेट के फॉर्म में रिमूव करता है। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ अवर बॉडी इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सी, we need oxygen to stay alive. The nose, windpipe and lungs are the main organs of our respiratory system. So students, हमें alive जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है and nose, windpipe, lungs हमारे respiratory system के main organs होते हैं. You can see in this picture, this is nose. Nose के बाद ये windpipe है and these are the lungs. And lungs, they all together constitute our respiratory system. The air enters the body through our nose. सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर एयर हमारी नोज के थ्रू एंटर करती है. उसके बाद देयर आर स्मॉल हेयर्स इनसाइड आवर नोज दैट प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी. छोटे छोटे हेयर हमारी नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो उस एयर के साथ जितने भी डस्ट एंड जर्म्स एंटर कर रहे हैं उनको प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी. फिर एयर पास करती है विंड पाइप के थ्रू एंड कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है. ब्लड क्या करता है, ब्लड इस ऑक्सीजन को जो कि लंग्स में है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है ओवर देयर ओनली. We breathe out this carbon dioxide through our nose and carbon dioxide गैस को हम अगेन अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ आउट कर देते हैं and thus exchange of gases and purification of blood takes place in the lungs. and इस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज या ब्लड का प्योरिफिकेशन लंग्स के अंदर होता है एंड इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन प्रोसेस कहा जाता है. ओके, चलो नाउ गुड ब्रीदिंग हैबिट्स. अब अच्छी ब्रीदिंग हैबिट्स क्या क्या है. नंबर 1, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ब्रीथ फ्रेश एयर. हमेशा हमें क्या ट्राई करना है कि हम फ्रेश एयर को ब्रीथ करें. देन हमें जो अपने घर के विंडोज एंड वेंटिलेटर्स हैं उनको ओपन रखना चाहिए सो दैट फ्रेश एयर घर में अंदर आ सके. शुड ब्रीथ थ्रू द नोज. हमेशा नोज के थ्रू ब्रीथ करना चाहिए बिकॉज नोज के अंदर जो हेयर होते हैं स्टूडेंट्स वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं. ओके, एंड उनको कहाँ, हमारे नोज से अंदर या हमारे बॉडी के अंदर जाने से प्रिवेंट करते हैं. एंड अगर इफ ये डस्ट पार्टिकल्स क्या आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे तो ये एलर्जी कॉज कर सकते हैं अगर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंचते. वी शुड नॉट कवर आवर फेस व्हाइल स्लीपिंग. सोते वक्त हमें अपना फेस कवर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वी विल कीप ऑन ब्रीथिंग द सेम इम्प्योर अगेन एयर अगेन एंड अगेन. ओके, अगर आप अपना फेस को कवर करके सोते हो तो उससे जो इम्प्योर एयर है आप उसे ही बार बार क्या कर रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो. वी शुड नॉट वेयर टाइट क्लोथ. टाइट क्लोथ हमें नहीं पहनना चाहिए बिकॉज ये क्या करता है, हमारे ब्रीदिंग मूवमेंट्स को हिंडर करता है. नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम. The function of the circulatory system is to circulate the blood throughout the body. So name से सजेस्ट किया जा सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, जो ब्लड है उसे हमारी थ्रू बॉडी में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम है. सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर स्टूडेंट हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स इंक्लूडेड होते हैं. ये ऑर्गन्स हैं जो मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. एंड ब्लड वेसल्स के अंदर वेन्स एंड आर्टरीज जैसी डिफरेंट टाइप्स की क्या होती हैं, वेन्स, ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में. Our heart pumps the blood and the blood vessels carry it to the different parts of the body. सबसे पहले हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है and blood vessels इस ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेकर जाती हैं. You can feel the pumping of heart by putting your hand on the left side of your chest. and आप क्या कर सकते हैं, इस हार्ट की पंपिंग को फील कर सकते हैं अपने हैंड को कहाँ, चेस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे. If you put your hand then you can feel the heartbeat. Okay. You may also hear it as a lubbed up sound. and आप उसको कैसे साउंड की तरह सुनेंगे, lubbed up sound. जब हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है which is a kind of lubbed up sound. Then next we have reproductive system. Reproductive system is responsible for producing young ones. वो ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी में यंग वंस यानी कि अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, इस सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स को स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं एंड दिस सिस्टम हेल्प्स इन कंटिन्यूइंग लाइफ ऑन द अर्थ. ठीक है, इसी सिस्टम के थ्रू हमारी अर्थ पे लाइफ कंटिन्यूड रहती है. नेक्स्ट वी हैव व्हाट, नर्वस सिस्टम. Our nervous system consists of the brain. अब हमारे नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूडेड है, दे आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. द ब्रेन लाइज इन द स्कल इन द हेड. ब्रेन कहाँ होता है, हमारे हेड में. ठीक है, स्कल वाले पार्ट के अंदर होता है जो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है नर्व्स के थ्रू. ओके, दिस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द बॉडी फंक्शंस एंड ये जो नर्वस सिस्टम है इसको मास्टर ऑर्गन सिस्टम भी कहा जाता है बिकॉज ये बाकी जितने भी ऑर्गन सिस्टम है उन सभी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, लाइक वॉकिंग, हियरिंग एंड feeling. That's all for the chapter. It's completed. I hope you all must have understood about the different organ system which are there in our body and helps us to survive. Okay, we'll meet you very soon in the next class. Then take care and thanks to everyone.